السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، آئیے سب سے پہلے ہم تمام کرشک و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار اور عالم روحانی کے انسان گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے سرکار ننگے ننگے ہاتھوں سے بھیک دینے والے مختار کی بارگاہ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے حدیث دو پاک پیش کریں پڑھنے کا آقائے نعمت مخدوم گرامی تک استاد الشورا حضرت علامہ مولانا سید حسنین میاں صاحب قبلہ نظمی ماہر سبحان اللہ. یہ سرکار اعلیٰ حضرت کے پیر کے پوتے آپ فرماتے ہیں منسلک میں مدینہ سے ہے ماں رہرا کی بھی. فرماتے ہیں منسلک میم مدینہ سے ہے ماں رہرا کی بھی. یہ لگانے کی عادت نہیں ہے. تو ہٹایا اس کو. ہاں سرکار نظمی میاں صاحب قبلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ منسلک میم مدینہ سے ہے ماں رہرا کی بھی. یہ سید زادے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے پیر کے پوتے ہیں. ماں رہرا شریف کے صاحب سجادہ تھے. آپ فرماتے ہیں کہ منسلک میم مدینہ سے ہے ماں رہرا کی میم. ذرہ ذرہ اس زمین کا مہر طلب بن گیا. ذرہ ذرہ اس زمین کا مہر طلب بن گیا. اور آگے فرماتے ہیں دوسرے کا اگر شعر ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ یہ مبالغہ آرائی ہے، لیکن ایک سید اور وہ بھی سید جو وقت کے پروفیسر، وقت کے علامہ، وقت کے ڈاکٹر، وقت کے نباز تھے. فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا عشق کوئی معمولی عشق نہیں تھا. فرماتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کسی اور نے احمد رضا کو نہیں کہا ہے. آپ کو سن کے تعجب ہوگا، یہ بھی بتاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کس نے کہا. فرماتے ہیں سید نظمی میاں صاحب قبلہ کہ عشق سرکار دو عالم کا یہی فیضان ہے. عشق سرکار دو عالم کا یہی فیضان ہے. نوجوان احمد رضا اب اعلیٰ حضرت بن گیا. احمد رضا اب اعلیٰ حضرت بن گیا اور آپ کے پیر کی طرف منسوب کرتے سرکار نظمی میاں فرماتے ہیں کہ سید آل رسول پاک کے فیضان سے، سید آل رسول پاک کے فیضان سے خانزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا. بے شک بے شک بے شک بے شک. کیا سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا. یہ اعلیٰ حضرت جو
सबसे पहले किसी ने कहा था। तो सरकारे आला हजरत का एक बार गुजर, आप लोगों में बहुत से लोग लखनऊ बाराबंकी गए होंगे और वैसे भी बहुत सारे लोग अजमेर शरीफ जाते हैं। वापसी में आदमी बहुत से लोग हाजिरी देते हुए बरेली शरीफ, फिर उसके बाद देवा शरीफ सरकारे वाली से पाक के पास जाते हैं। सरकारे वाली से पाक अपनी खानकाह में जलवा फरमा है, आपके मुरीदीन हैं, मुतबदीन हैं। अचानक आप फरमाते हैं कि लोगों अपना अपना लिबास दुरुस्त कर दो। ये कौन कहते हैं? सरकार वारी से पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह। हिंदुस्तान में बुजुर्गाने दीन के बड़े बड़े गुंबद आपने देखे हैं, और वैसे भी बीजापुर जो गुंबदों का शहर है, सुभान अल्लाह। ये इस शहरे मुकद्दस को मदीनतुल औलिया कहा जाता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जितना खूबसूरत दरगाह हजरत वाली से पाक का है, कहीं की दरगाह की खूबसूरत नहीं है। गुंबद की बात करता हूँ, बनावट नक्शो निगार की बात करता हूँ। जितना हसीन गुंबद सरकार वाली से पाक देवा वाले सरकार के हैं, मैंने किसी गुंबद को नहीं देखा। वैसे गुंबद में आराम फरमाने वाले तो एक से एक मरातीब के बुजुर्गाने दीन है। सरकार वाली से पाक फरमाते हैं। अच्छा, वाली से पाक को समझना हो तो मैं आपको बताऊं। सरकार वाली से पाक के एक मुरीद ने कहा कि हुजूर क्या बताएं। सरकार वाली से पाक अक्सर जो है ना, वो एक चादर नीचे और एक ऊपर एहराम की हालत में होते थे। तो लोग देखते नहीं थे कि नमाज पढ़ रहे हैं, तो बाहर वाले बोलते कि हजरत आप नमाज नहीं पढ़ते, और लोग मुझको टिप्पणी करते हैं मेरे सामने कि तुम्हारे पीर साहब नमाज नहीं पढ़ते हैं, तुम्हारे पीर नमाज नहीं पढ़ते हैं, सरकार आप नमाज। तो फरमाया अच्छे ठीक है, अगर ये कहते हो कि नमाज नहीं पढ़ते हैं तो एक काम करो। बोले क्या? पालकी, पहले पालकी का रिवाज था। बड़े बड़े लोग बुजुर्गाने दीन जब चलते थे तो पालकी में बैठते, 4 लोग पालकी उठाते, लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते। आपने फरमाया चलो चले चलते हैं। 4 मुरीदों को लिया, पालकी में बैठे, कहा अपनी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो। 4 लोगों को आंखों पे पट्टी बंधवाई। अब फरमाया चलो। अभी चंद ही कदम चले थे, वहीं से बात में फरमाया बस रोक दो, रखो, आंखों से पट्टी उतारो। और जैसे ही पालकी नीचे रखा, चंद कदम चले थे, चंद ही कदम चले थे, पालकी रखा, आंखों से पट्टी जब उतरी तो देखा कि एक बड़ा सा मजमा लगा हुआ है, जम्मे खफीर मौजूद है। और जैसे ही वाली से बात की वहां हाजिरी हुई, बड़े बड़े अकाबिर वहां बुजुर्गाने दीन जलवा फरमा थे। सबों ने कहा आज कोई नहीं, आज वाली से देवा नमाज पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह। क्या कहा? आज कोई इमामत नहीं करेगा, ये वाली से पाक इमामत फरमाएंगे। हजरत वाली से पाक ने फरमाया भाई मुझे बूढ़े को क्यों परेशान करते हो, आप ही में से कोई नमाज पढ़ा दो। लोगों ने कहा नहीं, वो नमाज आपको पढ़ानी है। सरकार वाली से पाक कदम आगे बढ़ाते हैं, मुसल्ले पे जलवा फरमा होते हैं, और उसके बाद फरमाते हैं अल्लाहु अकबर। नमाज मुकम्मल हुई, रुकू सजदे तिलावत सब हुए, और जैसे ही सलाम फेरा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, तो जितने लोग दाएं तरफ सलाम फेर रहे थे गुंबदे खजरा नजर आ रहा था, बाएं तरफ सलाम फेर रहे तो खाने काबा नजर आ रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वारिस से पाक ने फरमाया मियां तुम वारिस के नमाज के पीछे पड़े हो, अरे मैं वारिस नमाज पढ़ता हूँ तो मुस्तफा के मदीने में जाके नमाज पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। ये वो वारिस से पाक हैं जो नमाज पढ़ाते पढ़ाते लोगों को गुंबदे खतरा और खाने काबा का दीदार फरमाते। वो वारिस से पाक फरमाते हैं मुरीदों को मियां जल्दी जल्दी अपना लिबास दुरुस्त कर लो। तो लोगों ने कहा सरकार बात क्या है? ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि गहरे नथु खैरे की बात होती तो शायद ये हद से नीचे न उतरती। मैंने इसीलिए सरकार वाली से पाक की फजीलत समझा दिया है कि किस पैमाने के वली है वो। फरमाते अपना लिबास दुरुस्त कर लो। मुरीदीन ने लिबास दुरुस्त किया, फरमाया बस अदब से बैठ जाओ। मुरीदों में से एक
کے मुंह लगे होते हैं। उसमें एक ने कहा सरकार वजह तो क्या है, जरा बताया तो जाए, वजह क्या है, दुरुस्त हो जाओ, अदब से बैठ जाओ। आपके होते भी हम जितने अदब से बैठे हैं, मुर्शद के सामने कोई मुरीद बेअदबी के साथ तो नहीं बैठेगा, कोई बेअदब तो नहीं होगा। बस आप फरमाते और अदब का इजहार करो। आपने फरमाया मियाँ अब तक तुमने ये देखा है आलिम उलमा आ रहे हैं, अभी हमारे बीच आगा हजरत तशरीफ ला रहे हैं। ये सबसे पहले अगर हिंदुस्तान में इमाम अहमद रजा को आगा हजरत किसी ने कहा है तो बारी से पाक देवा वाले सरकार ने फरमाया था। वो आलिम इतने बड़े हैं जो सिर्फ आलिम नहीं आलिमों के सरदार हैं, सिर्फ हजरत नहीं आगा हजरत है। और इस तरह प्यार से बंदे का ये है कि वो बंदा मुस्तफा के रोज़े आमद के सामने खड़ा हो जाए और अर्ज़ करे वो सूए दानाज़ार पीते हैं, गोरे किले बहार पीते हैं, और जो तेरे दर से यार पीते हैं, दर बदर यूं ही खार पीते हैं। सुभान अल्लाह। मियां तुम उनको क्या समझोगे, वो सिद्ध पे अगर ये आगा हजरत आ जाता है और गुंबदे खतरा के सामने अगर खड़ा होके ये कह देता है कोई क्यों पूछे तेरी बातें रज़ा, मायूस होके। वैसे तो अभी आपने सुना, उलमाए किराम से आपने सुना है आला हजरत सरकार ख्वाब में बहुत बार देखा नबी को। और अभी आपने अपने खतीब व इमाम से समाअत फरमाया है कि एक आदमी महफिल में है, उनके ख्वाब में सरकार तशरीफ ला रहा, हजरत इलाह फरमाए खड़े होकर सलाम पढ़ रहे हैं। मतलब ख्वाब में किसी के आए, अभी नबी ख्वाब में तशरीफ लाए हैं, आला हजरत ने दीदार फरमाया, लेकिन फरमाया ना ऐसा नहीं। मियाँ सरकार वाली से बात फरमाते हैं, मियाँ वो गुंबदे खजरा के सामने जाके खड़ा हो जाता है और ये कहता है या रसूल अल्लाह आज जागते में सर के आंखों से बेदानी की हालत में आपको देखना चाहता हूँ। अगर इसके ये आमादा हो जाता तो ये अहमद रजा अगर कहते कहते मायूस होके कहता है कि कोई क्यों पूछे तुझसे तेरी बातें रजा, कोई क्यों पूछे तुझसे तेरी बातें रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब नबी की बारगाह में अहमद रजा ने अपने को कुत्ता कहा था तो मुस्तफा करीम गुंबदे खजरा से बाहर तशरीफ लाए और सर की आंखों से सरकार आला हजरत ने वक्त के कुतुब सरकार ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह की हमराही में आप फरमाते हैं गुंबदे खजरा की जाली हकी दरवाजा खुला और सर की आंखों से सरकार आला हजरत ने मुस्तफा करीम का दीदार फरमाया। जैसे दीदार हुआ फरमाते चमक किससे पाते हैं चमकाने वाले, चमकाने वाले, और तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कहते हैं ये वही अहमद रजा आ रहे हैं जिनको आका हजरत कहा जाता है। सुभान अल्लाह। जिस शख्सियत को, जिस अहमद रजा को सरकार वाली से पाक आला हजरत कहें तो समझना चाहिए कि आला हजरत को समझने के लिए कम से कम तो हजरत आपको बनना पड़ेगा, कम से कम हजरत बनना पड़ेगा। हजरत नहीं है तो पल्ले नहीं पढ़ सकते हैं मदरसा अहमद। और एक बात बताऊं आपको कैसे पल्ले पड़ेंगे, सोचने की बात है। अहमद रजा इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने जितनी किताबें लिखी है, अच्छा एक बात बताऊं, जितना फास्ट आदमी पढ़ सकता है उतना फास्ट आदमी लिख नहीं सकता है। ये जाहिर सी बात है, अमूमी बात है कि जितना फास्ट आदमी लिखता है, जितना फास्ट आदमी पढ़ता है, उतना फास्ट आदमी लिख नहीं सकता। हमारी जिंदगी के औकात, हमारे जिंदगी के लम्हे मिनट घंटे दिन बरस कम पड़ जाएंगे, इमाम अहमद रजा की लिखी हुई किताब नहीं पढ़ सकते हम। और पढ़ने की तो बड़ी दूर की बात है। इमाम अहमद रजा की एक ही किताब जिसे हदायत बख्शिश कहा जाता है, कौन सी किताब?
अच्छे अच्छे मौलवियों के पल्ले नहीं पड़ती है ये किताब। हाँ, कौन सी किताब? ये नाम की किताब है आला हजरत की। ना मतलब दीवान आला हजरत जो है ना, दीवान शायरी दीवान जो है ना, ये इमाम अहमद की नातिया शायरी की जो किताब है हदायत के बख्शिश, अच्छे अच्छे मौलवियों की ये किताब नहीं पल्ले पड़ती रहती है, अशार नहीं समझ पाता है। फतावा रिजविया क्या समझेगा, फतावा रिजविया क्या समझेगा। इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ही हिकमत अंजाम दिया है। और आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। लोगों एक चीज याद रखें आप, इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में किताबें बहुत लिखी, 1200 किताबें लिखी। किसी ने कहा 54 जुबानों पे, किसी ने कहा 70 जुबानों पे, किसी ने कहा 150 जुबानों पे। बहुत ज्यादा छोड़ दो, 54 ही 54 ही जुबान आप याद रखो। अगर 54 जुबान ही का जानने वाला अहमद रज़ा इतनी जुबान जानता है, यहाँ बैठे हुए कितनी जुबानों का जानने वाले हैं? कितनी जुबानों के जानने वाले हैं? जो अपने को सबसे बड़े जानकार हिंदुस्तान में कहते थे, इल्मे रियाजी का जानने वाला अहमद रज़ा के यहाँ पहुंचते। आज भी लोग कहते हैं ना, मौलाना लोगों को क्या आता है, मौलवी लोगों को क्या आता है, खाली नमाज पढ़ाना, बस सुबह शाम नमाज पढ़ा है, अली बात साफरा खत्म हो गया, इस मौलवियों को क्या आता है। भाई ऐसा नहीं है, हर मौलवी ऐसा नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखें, मौलवी कैसा भी होगा हमेशा आपके आगे होता है। सुभान अल्लाह, हमेशा आपके आगे होता है। नमाज पढ़ाए 5 वक्त आपके आगे है, और जब आपके घर में निकाह हो तो मौलवी आगे है। आपके घर में बच्चों को अगर कुछ हो जाए तो आप पढ़ने में आगे है। आपके घर में माँ बहनों को कुछ हो जाए वहाँ वो बच्चे मौलवी आगे हैं। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आदमी को जब एक से दूसरे को करीब करना होता है, यानी निकाह पढ़ाना होता है, उस वक्त भी मौलवी आगे होता है। एक ही वक्त में आप मौलवी से आलिम से आगे होते हैं तब जब गैर आदमी मर जाता है, तब आप आलिम के आगे मुसीबत आ सकते हो जिस दिन आप दम तोड़ोगे। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इसका मजा चख लिया तो आप आलिम के आगे हो जाओगे। मतलब आलिम मौलवी के आगे होना है तो मरना पड़ेगा, इसलिए आगे तो आप नहीं जा सकते। इसलिए ये दावा मत करो। हाँ, इतनी जरूर आप मोहब्बत कीजिए कि अगर आलिम से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह ताला उसका सीधा अच्छा अता फरमाएगा। अगर आपने उसकी मदद कर दी है तो आलिम को आपने अगर नजराना दिया और आलिम ने शुक्राना अदा कर दिया, रब की बारगाह में दुआएं कर दी, तो मौला ताला इसलिए के नजराने के एवज में 70 गुना ज्यादा आपके इस रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। लेकिन कभी करके तो देखिए, हम तो देखे हैं कि मौलाना की तनख्वाह 8,000 रुपया 10 मौलाना को नजराना नहीं देना, बड़े मस्ती के होते हैं। भाई को बोले तो नजराना दिए तो बड़ी मस्ती आती है, इनको नहीं देना करते, खाना भी नहीं खिलाना करते। नहीं भाई, आलिम है, आपका इमाम है। अच्छा एक बात बताइए कि कम से कम किसी को खिलाने के बाद तो इतना जरूर कहा गया है ना कि जिसका खाओ उसका शुक्र अदा करो, कहा गया है ना। अब वैसे उमूमी तौर पे आदमी जिसके दस्तरखान पे खाता है ना, तो कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा मनतमी वस्ते मन सक़ानी व जअलनी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह जिसने हमें खिलाया है तू उसको खिला, जिसने हमें पिलाया है तू उसको पिला। अल्लाह तूने मुसलमान बनाए तेरे और तेरे नबी का करम है माशाअल्लाह। ये दुआ कौन पढ़ता है? सब नहीं पढ़ता। हाँ, सब आदमी दस्तरखान पे खा लेता है, क्या फलान का खड़ा है, अरे नमक ज्यादा हो गया था तो, अरे फलान का क्या खड़ा है, बूटी नहीं दिया था तो, और बूटी दिया तब भी बूटी खा, क्या फलान का, रे हराम का बहुत अच्छा खड़ा है। बातें गाली देता है, तारीफ करता है। एक आदमी खाता है तो खाने के बाद कहता है अल्लाहुम्मा अतिम मनतनी वस्ते मन सक़ानी व जअलनी मिनल मुस्लिमीन। दुआ करके जाता है। दुआ देख, मतलब ये है किसी अहले इल्म को खिलाते हैं आप तो उसके बदले में दुआ करके वहां से उठते मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि अगर कोई आलिम दुआ देता है किसी दस्तरखान पे तो आलिम के वहां दूर होने से पहले अल्लाह ताला उसके दस्तरखान पे रहमतों
इरानी की फजीलत है। तो आला हजरत सरकार एक ही काम उन्होंने किया है। अच्छा एक चीज और है, यह था का माहौल। और जब से ये डब्बा आया है तब से तो अल्लाह की पता। बोले सरकार क्या भी है नहीं। बच्चे को बोले बेटा क्या देख लेते कह रहे पूरी रात इसके पीछे रे क्या है रे, खाना तो बाद में खाने पहला बाद में देख नहीं बन रहा वो अच्छा वो इसमें वो ऐसा मैसेज है जिसका पन्ना वो खाता रहता। मेरा बेटा भी खाते को ना शरीफ सुनता है और तबलीग सुनता है। आज उलमा की तबलीग और ना शरीफ सुनता है, लेकिन उसमें इतना गुम हो जाता है ना कि मैं खाते खाते बात उसके सामने से पहले बताया। मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। प्लेट हटाया, क्योंकि प्लेट जो छोटी बच्ची मेरी खा रही थी वो प्लेट मैंने उनके सामने रख दी। उसमें से ले रहा है वो जो हड्डी उट्टी ये वो छोटी वो हड्डी चबाए छोटी वो भी चबा रहा है, देख रहा चबा रहा। छोटी बच्ची हमारी रह जाएगी वो हंस दी। खाना खाते नहीं देखा जा तुम्हारे को? नहीं भैया मैं हंसती सोचते कि मेरी चबाई हुई हड्डी तू चबा रहा है। मैं जो हड्डी चबा के छोड़ती हूँ नीचे को देख के खा के क्या है इसमें? नीचे देखा ओ मेरे साथ 420 किया क्या तू? मेरा कहना ये डब्बा जब से आया है हमारा नौजवान बिगड़ गया है। कसम खुदा की इस डब्बे से जब तक इस डब्बे पे होता है आदमी माँ बाप सबको बाला ताक रखता है। मेरे नौजवानों जितनी देर इस डब्बे के पीछे भागते हो कम से कम उतनी देर नहीं 10 मिनट सिर्फ कितनी 10 मिनट सिर्फ वक्त निकालो अपने नबी पे दरूद और सलाम पढ़ लो। दरूद की फजीलत ये है कि सारी इबादतें रिजेक्ट तो हो सकती है मगर हमारा पढ़ा हुआ दरूद पाक और सलाम नबी ये रिजेक्ट नहीं होता, इसे अल्लाह ताला कबूल ही फरमाता है। इसलिए चाहिए नौजवानों ये डब्बे को छोड़ो, कभी नबी से मोहब्बत करके दरूद और सलाम भी पढ़ लिया करो। इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी आखिरी बात ये क्या करते थे, उनका एक ही मिशन था। अच्छे हमारे घर में बच्चे को किसी से प्यार हो जाए मोहब्बत हो जाए तो हमारा नौजवान हाँ बोल वो कला है नहीं हाँ बेटा क्या है मैं उसी से शादी करने वाला था। हम लोग मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हमारी जब शादी हो रही थी तो हमारे को सोचना पड़ रहा था कि माँ बाप से बोलूं कैसे कि मैं शादी करूंगा, कैसा बोलना बाप को तो कैसा बोलना माँ को तो कैसा बोलना कि मैं शादी करने वाला हूँ। बोले तो अब मुझे तो देख रहा मैं बीजापुर में 1995 में आया, शादी 2005 में किया। ये बात भी मेरे वाली साहब 2002 में खत्म इंतकाल कर गए, लेकिन माँ से बोलने के लिए बताने के लिए बहुत सोचना पड़ रहा था कि बोलूं कैसे, परमिशन तो लेनी चाहिए ना। अरे शादी तो मैं बीजापुर में किया, अगर माँ से परमिशन नहीं लेता तब भी शादी हो जाती थी, लेकिन सोचा कि माँ के परमिशन के बगैर शादी कैसे हो, तो पहले अपने दोस्त को भी कराया। मौलाना मुकर्रम रज़ा साहब थे, मैंने उसे कहा भाई हजरत जरा मेरी माँ से बात करो। तो आप बोले क्या? तो मैं बीजापुर में शादी करना चाहता हूँ, मेरी माँ से जरा परमिशन लो, अगर बोली जब भी कर सकता वरना नहीं कर सकता। कल तक की पोजीशन ये थी माँ से पूछे बगैर हम शादी नहीं कर सकते थे, परमिशन नहीं दे सकते थे, मिली नहीं तो शादी नहीं। आज नौजवान बाप से भी कहता हूँ मैं नहीं करने वाला, दूसरे से क्या भी नहीं नको मैं वो छोड़ा हमला नहीं वो बराबर नहीं खानदान बराबर नहीं छोटी बराबर नहीं करते उसका ये है करते लपड़ा नहीं क्या कर दो मैं मेरे को वो छोड़ा है करते तुम्हें कहती है तो ठीक है, तो देखो बाद में क्या होता हमें मालूम नहीं। मतलब वार्निंग बेटा देता है, मतलब जिससे मोहब्बत किया हमारा नौजवान बाप से हुज्जत करता है मगर उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, उसके बारे में बाप अगर कहे कि वो बराबर नहीं है तो बेटा नहीं सुधरेगा। सब बोल सकते हो मगर जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसके बारे में तुम कुछ नहीं बोल सकते। हे माँ तूने पैदा किया दूध पिया बहुत अच्छा, लेकिन मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसके बारे में तू क्या भी नहीं बोल सकती थे, क्या भी ज्यादा बोले क्या जा बोली ना मैं फांसी लगा ले। ठीक है
نگو باپ حاصلوں کو بتا دے ٹھیک ہے. ایک نوجوان غیر لڑکی سے محبت ہو جائے تو اس کو چھوڑ کر کے اس کی برائی سنا, 1000 برائی ہونے کے باوجود بھی وہ برائی سننے کو تیار نہیں ہے. ایک نوجوان یہی کام کیا ہے. امام احمد رضا نے سب برداشت کیا تھا. فرمایا احمد رضا کے باپ کو گالی تو سن لے گا, بھائی کو گالی تو سن لے گا, دادا کو گالی تو سن لے گا, مجھے گالی تو سن لے گا, مگر یہ کبھی برداشت نہیں ہوگا کہ احمد رضا بریلی کے خان کے سامنے مدینے کے سلطان کو اگر کہے گا کہ وہ کیف نہیں جانتے ہیں, زبانیں کھینچ لوں گا. اگر یہ کہو گے پیٹھ پیچھے نہیں رہی ہے, ہاتھ کاٹ لوں گا. اگر تم یہ کہتے ہو وہ مدد نہیں کر سکتے ہیں, تمہاری زبان تراش لوں گا. امام احمد رضا فرماتے کن کے بسایا ہے خنجرے خوار پرتبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ چکر ہے, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شکر. فرمایا سب برداشت ہے مگر مدینے کے سلطان کے بارے میں ایک جملہ برداشت نہیں کرتا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, مسلک اعلی حضرت زندہ آباد. نعرہ تکبیر. فرمایا اس لیے کہ میں مدینے والے سے محبت کرتا ہوں. اچھے بتاؤ اگر یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ایسا کہہ رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں یا صحیح؟ سب بولیے. صحیح کہہ رہے تو ہیں. یہاں امتحان ہوگا اب آپ کا. اب کل سے یہ دیکھا جائے گا کہ نبی کی برائی جو بیان کرتا کون سنتا, کون لڑنے کو آتا. جو لڑنے کو آتا ہے سمجھ لو نبی کا وفادار ہے. جو لڑنے کو آتا ہے مصطفیٰ کے شان کے آگے جو لڑنے کے لیے تیار ہوتا سمجھ لو یقیناً نبی سے محبت کرتا ہے. اور جو سامنے والا نبی کی برائی بیان کرتا اور دوسرا سن لیتے رہتا ہے, سمجھ لو یہ پیار بھی ابھی کچا ہے, یہ ابھی پیار کے مفہوم ہی کو نہیں سمجھا ہے. اسی لیے میرے رضا نے کھل کے کہا تھا میں نبی کا ہوں, نبی میرے ہیں, اور میں اس وقت تک جب تک میرے جسم میں جان ہے میں نبی پہ یہ جان قربان کرنے کو تیار ہوں. اس لیے احمد رضا ایک ایسے عاشق رسول کا نام ہے جنہوں نے پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں صرف کر دیا ہے. ہمارے لیے چاہیے کہ ایسا رہنما, ایسا قائد جو ہمارے درمیان ہے, ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں, ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, سرکار اعلیٰ حضرت کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے عشق جیسا مولا ہمارے دلوں میں بھی عشق رسول عطا فرما, اور ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ساتھ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.